Hello everyone. So we were studying about recurrent neural network. I want to revise the concept, what I have taught and introduced in recurrent neural network. See, the concept lies here in RNN is to deal with sequential data. Okay. Since because we want to enter text and this text is in a sequence. In general, what happened with machine learning models, that means simple ML models, we do convert text into numerics. Okay, that's what we do. And converting text into numerics, we apply count vectorizer or TF-IDF. These are the general techniques which we do apply to convert text into numerics. And we feed this numerics into ML model for classification as one of the tasks. The point here is we never concern that our data is in a sequence. We never concern that your data is having some context. Just converting text into numerics, that means annotating each and every word with some numerical value according to some technique that we do use in count vectorizer or TF-IDF and put it into the model for classification. Okay. However, we don't consider it as in a sequence or context. We are not talking about any order, nothing like that. So, in this particular case, the semantics, okay, the semantics or meaning of text doesn't came into picture. Also, syntax, fine, that also doesn't came into the picture. What we did is we collected the unique words which are present in the text, unique words which are present in the text. We converted them into numerics. That's it. And we feed it into the model for the training purpose. That's what we did. Okay. And model give you accuracy like 80%, 90%. We have seen most of the cases like 80, 90% accuracy you are getting. But I don't believe in this thing. Okay, I don't believe. Why? Because if you're talking about a text, text is a having your sentences, and sentences are like having words, and they are in a proper syntax. They are having some meaning, and if you're not considering the syntax, if you're not considering the meaning, that means you are not considering the entire text in a form of a sequence. That means okay, it's like some event occurred. Okay, some event occurred, and then another event occurred. That's what we call as a sequence. Okay, so we are not considering any of the form, no time stamp we are considering. Okay, nothing. Just converting text into numerics, that means just taking the unique words from the text and annotating them with a numerical value. Okay, and then we are just applying our model. So this doesn't make any sense. Okay, we have to be like use
another technique, a different approach, a different model, a different architecture to process such kind of data, which is in a sequential format. Not only with the text, if you do have a time series also, time series problem, that means here also there is a sequence, okay, according to the date or time or whatever, okay, because here that date and time keeps importance. What happened today, then what is going to be like, okay, what happened yesterday, and then so on. Okay, so there is a sequence of the events. Fine. Similarly, in text also, we do have the sequence of events. All right. For that, to treat data or the text in a form of a sequence, we do have a recurrent neural network, RNN. Okay. And this approach is widely used in text analysis along with your time series. Okay, wherever you are having sequential data, we do use such kind of neural network. Recurrent means repeating neural network. The neural network which we have learned so far, okay, is not at all repeating or it's recurrent. It's feed forward neural network. Okay, that means you are having the layers, you are having the neurons over the layers. Okay, and everything is going in front. Okay, you take the input and everything is going just in a forward direction. That's what you are having. This is your feed forward neural network. And during back propagation, we adjust the weight and the bias of the neurons. Okay, so this is forward learning. We are treating the data so that, okay, these are the features, data features. We are giving it to the layer, to the neurons, and the neurons are learning or training over the data in a sequential way. Okay, in a sequential. This model is sequential, feed forward. Okay, but recurrent neural network is different. Now, how's the difference between RNN and the feed forward neural network? Let me share my entire screen. Okay, so that also we did checked in the previous class. This is your RNN and feed forward neural network diagrams. This is what I just told recently. Feed forward. Just go ahead in a sequence. Okay, that means layers are arranged in a sequence. I'm not talking about the data. Layers are arranged in a sequence. Okay, and we are not getting a chance to go back. Only the back propagation is a process of adjustment of the weight and the bias. Rest is just feed forward only. You have to go layer by layer by layer, reach at the end. That is the output. And then, according to the error, perform the optimization in back propagation. This is feed forward. Okay. And now, in case of recurrent neural network, you can see that there is a loop. Okay. There is a loop. We are giving the input x1, x2, x3, x4, and it can repeat. Fine. So, recurrent neural network is a type of artificial neural network that is designed to handle sequential data. I'm not talking about sequential model. See, this model is sequential. Model is sequential. We write now model equal to sequential. Okay. While creating deep neural network, deep learning, in case I have already taught you about this thing. Okay. But now in recurrent neural network, we are treating data
which is sequential in nature. Okay, it's not like that non-sequential data. That means it's not like that non-ordered data. Okay, you're keeping data. Okay, that is a text that it's a in a sequence. Okay, so artificial neural network and the CNN, they use feed forward because there is no like a sequence thing. Okay, whether you are dealing with the image, there we use CNN, and if you are dealing with any other kind of data, okay, like CSV file or Excel file where we are available with the features, okay, different features, so that's not been the sequential data. Okay, so there we use ANN, artificial neural network. Okay, the point is, in case of RN, the information can flow back and forth through internal loop. Okay, we can consider the past information, that is very much important. The past information, the previous information, the one which happened on yesterday, and the one which happened day before yesterday. Okay, so there is a sequence, there is a story of events, okay, which happened. So the traditional neural networks, each input is independent, while in case of RNN, it can access and process the information from the previous also. So remember, previous also. Okay, but in case of ANN, we don't talk about the previous data. Okay, so sequential data is a data which is having an order. I already told you, order matters. That means there is a proper syntax, semantics, all these things are there. Okay, and each piece of data in the sequence is related to one before the after. That means it's like events which is happening. The data is treated in the form of an events, and what happened yesterday, then only we can cover up what happened today. Okay, so time series data. Okay, that is also based upon the time. Fine. So it's a sequence of events. Natural language processing text. The language is also having data which is in a sequence nature. Okay, and we need to understand the relationship between the ideas, the relationship between the words, sentences, meanings. That's what we have to consider. Okay, and speech also. That is also sequential in nature. Fine. So that's the reason we are using recurrent neural network. Okay, because traditional artificial neural network, they are powerful, but they struggle. They don't deal with the sequential data. Okay, in a effective way. I already told that you convert the text into numerics. Okay, and just feed it into the neural network or either into a machine learning model. They will give you the output. Okay, but treating them in a sequential way is not the task of your artificial neural network or simple machine learning model. For that, you have to consider RNN. In order to identify the relationship between the elements are very much crucial. Okay, fine. And also fixed size. They do require a data which is of the fixed size. Okay, so if you are having a shorter sequences, we have to perform the padding. Okay, we have to add the bits to the data that are in general zero. Okay, to reach to the length of the sequence of the longest sentence. Okay, for example, there might be few sentences small, there might be few sentences large, so you have to perform the padding. Okay, and you have to make every sentence equal in length, then only the artificial neural network will work properly. That's what you have to do. In that particular case, you will be having irrelevant zeros added. Okay, there will be irrelevant zeros added into the data. Okay, so the network will struggle to process the actual data, increasing computational burden. Okay, unnecessary burden will be increased. So you have to make a fixed size data, then only the artificial neural network will work. However, it's not mandatory that any event which is having some words like uh, 10 20 words, okay, the one which I can describe that and the another event will also be described in the 10 or 20
word limit. No, it's not like that. Okay, events can be explained in different word limits. Okay, depends upon the requirement. But in case of artificial neural network, we had to take care about this thing. In case of recurrent neural network, we got a chance that it's not mandatory that you should have the same amount of your the word explanation in a sequence. Okay, fine. So here the context information is not considered in ANN. Fine, and the length is also fixed. All right. So artificial neural network can't handle. Okay, fine. So these are the limitations of ANN. Now, over these limitations, we introduce RNN. Okay, so I also explained you this story. Okay, गांव की कहानी जो है स्कूल है गांव में. Okay, in a village there is a school, and there's a small village, and there is a school in the village, and here the students do have the classes. Okay, and they have been told a story. Okay, so the story which is told to the students, they do like the story, and काफ़ी मज़ा आता है. नया हम सुनाते हैं उन्हें, नई नई स्टोरी हम डेली कुछ ना कुछ नया बताते हैं, तो स्टूडेंट फील गुड. ओके, तो यहाँ पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काम करता है. कैसे काम करता है देखिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टोरी शुरू करी, डे नंबर 1 है. ओके, दिस इज योर डे नंबर 1. आपने कोई कहानी शुरू करी, कोई स्टोरी शुरू करी, डे नंबर 1 है. Okay, so in that story, you told that there is a king, he is having a horse, and there is one magician. Okay, so in the opening of the story, the king is looking to search for the horse, and the magician is going to help it. ठीक है, तो जो राजा है वो अपने घोड़े को ढूंढ रहा है और मैजिशियन उसकी मदद कर. ठीक है, तो डे नंबर 1 में ये कहानी सुनाई गई आपको. अब अनी डे खत्म हो गया. ऑल राइट, एंड देन डे नंबर 2 शुरुआत हुआ. डे नंबर 2 में आई नीड टू ऐड द नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ द स्टोरी. इसमें आगे का पढ़ाना है मुझे. ओके, तो डे नंबर 1 की स्टोरी याद होगी तो ही तो डे नंबर 2 से कंटिन्यू करोगे ना आप. ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द डे नंबर 1, हाउ यू कैन गो अहेड विद द डे नंबर 2. सो यहाँ पर जो पिछले दिन की कहानी थी डे नंबर 1 की. ओके, आई नीड टू कंसिडर दम, एंड देन आई नीड टू स्टार्ट विद डे नंबर 2 स्टोरी. तो हो सकता है डे नंबर 1 पर विद द हेल्प ऑफ अ मैजिशियन राजा को उसका घोड़ा मिल गया, वो वहाँ पर ख़त्म हुआ. और फिर अब वो आगे की कहानी है कि राजा उस घोड़े के साथ फाइट करने के लिए जाएगा, एंड वो डे नंबर 2 की कहानी है. ओके, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा. फाइन. तो जो पहले दिन की शुरुआत हुई. ओके, हियर वी गेव एन इनपुट एक्स टी. ओके, अब वो टाइम है ना, क्योंकि डे नंबर 1 है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम स्टैम्प. ओके, ये हमने कंसिडर करना ही पड़ेगा. ठीक है, फाइन. तो ये इनपुट है. एक चीज और होती है हिडन स्टेट. दैट मीन्स टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन अ पर्टिकुलर डे. ये होता है हिडन स्टेट, रिमेंबर, याद रखने के लिए. ओके, तो एच टी से डिनोट होता है. ऑल राइट, तो जितनी भी पिछली जानकारी है ये याद रखनी है. ऑल राइट, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो आगे की कहानी कैसे जोड़ पाओगे. फाइन, तो ये इनपुट है एक्स टी और एच टी हिडन स्टेट. ठीक है, तो जैसे हम अब नई कहानी की शुरुआत करते हैं, तो पिछले दिन की जो कहानी है उसी के आगे हम नई कहानी आगे जोड़ देंगे. ओके, सो सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि यू हैव बीन टोल्ड दैट वी नीड टू इंटरप्रेट सिक्वेंशियल डेटा. तो सिक्वेंशियल तभी हो पाएगा ना जब आपको पिछला क्या हुआ था वो याद रहे. ठीक है, तभी तो सिक्वेंशियल हो पाएगा, नहीं तो पिछला याद नहीं है तो फिर सिक्वेंस का बनाने का मतलब क्या है फिर. ठीक है,
मैं डे नंबर 2 पर आऊँगा, आई विल स्टार्ट विद forward story. But forward story will only be understood that on the day number 1 what happened. Okay, so day number 1 we introduce king, we introduce magician, we introduce about the horse and what happened with them, ये हमने करा। फिर डे नंबर 2 पर अपन आगे बढ़ गए। तो ये सब जो डे नंबर 1 पर हुआ वो हिडन स्टेट के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आप डे नंबर 2 पे शुरुआत करना, वहां आगे और नया इनपुट आएगा। ठीक है, नया इनपुट देना और ये हिडन स्टेट उसके साथ ऐड करना। ठीक है, ये काम करना और एक नई कहानी बना लेना। तो डे नंबर 2 खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, अब कहानी कहानी में नया मोड़ आ गया। जैसे कि हम कहानी आगे बढ़ाते हैं तो राजा और घोड़े के सामने नई चुनौती आती है। वही की वही तो बातें सुनाओगे नहीं ना आप। ओके, देयर विल बी समथिंग न्यू विल बी एडेड। ऑलराइट, फाइन। तो कहानी बढ़ चुकी है आगे। ठीक है, फाइन। तो जैसे आपकी कहानी के अंत में बच्चे नई चीज सीख कर घर जाते हैं, उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा वाईटी। ठीक है, सो यह आउटपुट आरएनएन के हिडन स्टेट पर आधारित होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन दैट, हिडन स्टेट पर आधारित होता है। जो हो चुका है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के ही अपन ने अपने आगे कहानी बढ़ाई और हमने अपना आउटपुट निकाला। तो हिडन स्टेट तो कंसिडर होगा ही होगा, हर बार हिडन स्टेट कंसिडर होगा, बिकॉज हिडन स्टेट इज गोइंग टू स्टोर ईच एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, तो देखिए क्या हुआ, ये कैसे बनना शुरू हुआ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सो लेट अस सपोज कि ये आपका आरएनएन है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। एक न्यूरॉन लिया मैंने अभी यहाँ पर। ठीक है, दिस इज आरएनएन, एक लेयर है ये। ओके, अब पुराना कुछ था नहीं, डे नंबर 1 पर हैं अपन। वी आर एट डे नंबर 1, पुराना कुछ था नहीं, तो अभी हिडन स्टेट 0 है। आपने डे नंबर 1 की कहानी सुनाई, उसको आप ले लो एक्सटी। ठीक है, उसको आप ले लो एक्सटी, फाइन। तो डे नंबर 1 व्हेन इट्स गोइंग टू फिनिश, आई एम गोइंग टू गेट एन आउटपुट। ये मुझे मिलेगा वाईटी, एक आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द आउटपुट? So this output will be input multiplied by the weight plus hidden state plus bias. This is equal to yt. अब वो हिडन स्टेट अभी पुराना तो कुछ था नहीं, तो मान के चलो ये 0 है, तो आपका आंसर होगा प्लस बी इक्वल टू वाई टी। ये आपका आंसर हुआ। अब ये जो आपको आंसर मिला, ये जो आउटपुट मिला वाई टी, इसको मुझे याद रखना है, इसको मुझे याद रखना है। सो दिस आंसर वाई टी विल बी गिवन टू द हिडन स्टेट। ठीक है, जस्ट टू कीप इट रिमेंबर्ड। ओके, दिस विल बी गिवन टू द हिडन स्टेट। ठीक है, अब नाउ डे नंबर 2 विल स्टार्ट, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। ओके, दूसरा दिन शुरू होगा, फाइन। तो ये भी मैं एज एन इनपुट दूंगा जो डे नंबर 1 पे हुआ था, और एक नई कहानी सुनाऊंगा, नया इनपुट दूंगा। ठीक है, नया इनपुट दूंगा और फिर अगेन मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा वाई टी, अगेन फिर कुछ आउटपुट मिलेगा, फाइन। तो ये जो हिडन स्टेट है जो कि वाई टी है पुराना वाला, ये एज एन इनपुट आएगा। ओके, ये देखो, ये एज एन इनपुट आएगा इसको, और ये एक्स टी ये भी एज एन इनपुट आएगा। अब इसका, क्योंकि ये वाई टी जो है ये एज एन इनपुट आएगा, तो इसको भी किसी ना किसी वेट के साथ रखो। तो वेट ऑफ द हिडन स्टेट ये रखो, प्लस जो आपका नया इनपुट है वो भी लो। ये जो वेट है ये तो इनपुट के साथ आए, ठीक है, प्लस बायस। और ये नाउ आई एम गोइंग टू गेट द न्यू आउटपुट वाई टी, ये मुझे नया मिलेगा। एंड अगेन आई एम गोइंग टू गिव दिस थिंग टू द हिडन स्टेट, मतलब यही चीज हिडन स्टेट के अंदर आ जाएगी और ये काम चलता रहेगा। ठीक है, फाइन। तो ये जो हिडन स्टेट में मुझे मिला था, ऑलराइट, आई एम एवरी टाइम ना आई एम कंसिडरिंग इट, फाइन। दिस इज द टास्क डन बाय द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आरएनएन यही काम करता है कि वो बस पुरानी बातों को याद रखता है। सिक्वेंशियल डेटा में पुरानी बातों का मैटर था नहीं, लेकिन यहां पर है। ओके, तो हो सकता है भाई, अभी तो मैं ऐसे करते हुए बना रहा हूं, आपको जो डायग्राम आरएनएन के अंदर मिला वो ये मिला था
कि इस तरीके से इनपुट दिया, फिर बाद में उसको वापस दे दिया। तो जो आउटपुट मिला था वो आपने हिडन स्टेट के अंदर देकर इसी न्यूरॉन को वापस दे दिया, और एक नया आपने इनपुट इस न्यूरॉन को दिया। वो उसने पुराने वालों को कंसिडर कर दिया, फिर आगे फिर ये चलता रहा है कहानी। ये तो रिपीटेशन हो रहा है। ओके फाइन, विल एक्सप्लोर मोर अबाउट इट अहेड। ऑलराइट। तो भाई ये कहानी हुई, चली, और फिर बैक प्रोपोगेशन में क्या होगा? अगर आपकी कहानी में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आपको बैक प्रोपोगेशन करना है, दैट मीन्स एरर्स को कम करना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। फाइन। ऑलराइट। तो बैक प्रोपोगेशन में ये होता है, बैक वो तो नेटवर्क लग रहा है तो बैक प्रोपोगेट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। ओके। आप चाहे मशीन लर्निंग मॉडल वी कैन कंसिडर, अदर वी आर गोइंग टू कंसिडर द डीप लर्निंग मॉडल। बैक प्रोपोगेशन का लॉजिक ही यही है कि भाई आप वेट एडजस्ट करो, ठीक है, मिस्टेक्स हो रही है, एरर्स आ रहे हैं तो उसे आप रिड्यूस करो, ये तो करना ही पड़ता है मुझे। ठीक है। तो आरएनएन जो है, दिस इज लाइक अ टीचर, एवरी डे ही यूज टू टीच समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ पढ़ाता है वो। और जो भी उसने पढ़ाया उसको याद रखा जाता है हिडन स्टेट के अंदर, और वो पिछले अनुभव से जो है वो ये जो पढ़ाया, ठीक है, वो आगे फिर क्या करता है, भविष्य बता सकता है, क्योंकि यही तो प्रिडिक्शन के लिए तो अपन यूज कर रहे हैं ना इन्हें। ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए तो यूज कर रहे हैं इन मॉडल को। ठीक है, तो आप सीक्वेंस ऑफ डेटा पे ट्रेन करो उसे। ओके। और फिर आगे के वर्ड्स का कॉम्बिनेशन वो बना लेगा, ये कर लेगा मॉडल। ठीक है। तो आरएनएन वैसे ही काम करता है, पिछली जानकारी को याद रखता है, समय के साथ सीखता रहता है, और नई एक्सपीरियंसेस उसके अंदर ऐड होते चले जाते हैं। तो डे जैसे डे 2 हो गया, फिर डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, सो न्यू एक्सपीरियंसेस वी आर एडिंग, एंड आरएनएन इज अपडेटिंग इटसेल्फ। वो हिडन स्टेट अपडेट करता रहता है। ठीक है, हिडन स्टेट उसकी अपडेट होती रहती है। फाइन। तो जैसा कि मैंने समझाया आपको, इनपुट है, दैट मीन्स कहानी का पहला हिस्सा, फिर हिडन स्टेट है, पिछले दिन की कहानी की यादें। तो ऑन डे नंबर 1 we don't have anything available. Okay, so in that particular case the hidden state is nothing, but जैसे डे नंबर 1 फिनिश हो जाएगा तो we'll be having your okay, we'll be having your डे 2, फिर डे 3, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ऑल राइट। फाइन। ठीक है। तो ये काम ऐसे होगा। ओके, एंड बैक प्रोपोगेशन वी आर गोइंग टू डू, पिछले अनुभव से फिर अपन सीखेंगे। ऑल राइट। ठीक। तो विद दिस स्टोरी, ठीक है, आप देख सकते हैं आरएनएन समय के साथ अपनी जानकारी को संभालता है और सीखता है, ये ऐसे काम चलता रहता है। ठीक है। फाइन। अब यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे अपन? तो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वी डू यूज द एक्टिवेशन फंक्शंस लाइक रेलू। ओके, दैट्स व्हाट वी डू यूज, है ना, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन सिक्वेंशियल डेटा के साथ डिफरेंट है। I also told you this thing in the previous lecture. In case of recurrent neural network, things are different. Here we do use, again, non-linear activation function तो use करना ही है, और यहाँ जो preferred activation function है वो 10h activation function है। ओके, हाइपरबोलिक टेंजेंट है ये एक्टिवेशन फंक्शन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये एक्टिवेशन फंक्शन क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। Okay, hyperbolic tangent, this activation function, its value lies between -1 to +1, और जीरो सेंट्रिक होता है। इसका मतलब ये है ना, ओके, यू आर हैविंग समथिंग विच इज लाइक जीरो सेंट्रिक। ठीक है, ये जीरो सेंट्रिक है, तो ये ऐसा कुछ आप मान के चलो, ये है +1 और ये है -1। ओके, so whatever be the value which do pass from the hyperbolic tangent, they get converted between -1 to +1, तो ये सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी -1 से +1 के बीच के अंदर। एक फ़ायदे वाली बात है कि ये नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, सबको ट्रीट कर लेगा। नेगेटिव है तो इट विल बी, वो 0 से -1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को डील कर लेगा, और ये -1 से +1 की रेंज में रहेगा। ऑलराइट। ठीक है। इन केस ऑफ रेलू एक्टिवेशन फंक्शन,
what we have seen is if there is any of the negative value it will be converted to जीरो, और पॉजिटिव वैल्यू सेम रहती है तो वो क्या बाइसिंग हो जाती है। ठीक है, वो रेलू के केस में बाइसिंग हो जाती है, उसी पॉजिटिव को प्रेफरेंस दे देता है और नेगेटिव को जीरो कर देता है। यहाँ ऐसा नहीं, नेगेटिव को जीरो नहीं करूंगा। ओके, ग्रेडियंट भी इजीली निकल जाएगा यहाँ पर। टेन एच हाइपरबोलिक जो फंक्शन होता है उसका ग्रेडियंट होता है वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स करके होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ग्रेडियंट आर नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, तो ग्रेडियंट तो निकालना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में ग्रेडियंट ही तो निकालते हैं। ओके, दैट्स व्हाट वी डू। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है कि बैक प्रोपोगेशन में हाउ वी डू एडजस्ट द वेट, ऐसे ही होता है ना, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। आई हैव ऑलरेडी टॉट इट। ये तो जनरल इक्वेशन है वेट को एडजस्ट करने के। अल्फा लर्निंग रेट है और ये एल लॉस है और ये डब्ल्यू जो है ये वेट है। ठीक है, सर नहीं बात। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से अपन वेट एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नॉन लीनियरिटी मैंने पहले ही बोल दिया, यो फंक्शन नॉन लीनियर फंक्शन ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अ, हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप है डेटा के अंदर वही तो कैप्चर करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन डीप लर्निंग में यही नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज़ करते हैं सारी, तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन द डेटा, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग ओनली। ठीक है, तो नॉन लीनियरिटी तो उसके अंदर कैप्चर होगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर हाइपरबोलिक टेंजेंट, ये होता है। ओके, उसका डेरिवेटिव ये होता है वन माइनस टेन एच टू एक्स करके होता है। ओके, तो ईजी है ये। ठीक है, ऑल राइट। इसकी एप्लीकेशंस की हम बात करें। ओके, एप्लीकेशंस इन आर एन एन की यदि हम बात करें तो जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट। ओके, आपको आउटपुट मिला y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, आपको आउटपुट मिला, यू हैव टू गिव इट टू द टेन एच एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, इसको आप अपने टेन एच एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर दे दीजिए। यही होता है, जो आउटपुट मिलता है उसको एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर देकर हम नॉर्मलाइज करते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका हिडन स्टेट आ जाएगा और इसको एज एन इनपुट दे देना डे नंबर टू में वेट के साथ मल्टीप्लाई करके। इसका वेट अलग होगा। ठीक है, इसका वेट अलग होगा। ओके, रीचेक दिस थिंग, द वन विच आई टॉट। ओके, इसको जरा वापस देख। फाइन। तो डे नंबर वन पे तो चलो हिडन स्टेट वॉज जीरो, यू गेव एन इनपुट, यू मल्टीप्लाइड विद डब्ल्यू, यू एडेड द बायस एंड दिस इज व्हाट यू गॉट। अब ये जो मिला ना आपको आउटपुट, अब यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन को हमको देना पड़ता है। यू हैव टू गिव इट टू द एक्टिवेशन फंक्शन टू हैव अ वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। इसको दे दो तो माइनस वन से प्लस वन में वैल्यू आ जाएगी। इसको अब ये जो रिजल्ट है इसे हिडन स्टेट के अंदर दे देना ताकि अब ये याद रखा जाएगा। फिर डे नंबर टू पर आ जाओ। डे नंबर टू पर नया वाला इनपुट ये दोगे और ये जो हिडन स्टेट में था ये भी एज एन इनपुट दोगे, दोनों दोगे। जो कल हुआ था वो भी एज एन इनपुट देना पड़ेगा और जो आज है वो भी आपको इनपुट देना पड़ेगा। दोनों चीज़ों का इनपुट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नए इनपुट दोगे तो मतलब फिर सिक्वेंशियल डेटा की तरह ट्रीट नहीं होगा, तो पुराना वो ले रहा है और फिर नया वाला कंसिडर कर रहा है, तभी तो जाके ये सिक्वेंशियल डेटा हुआ है। ठीक है, देन ओनली इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ सीक्वेंस। फाइन। और एक्टिवेशन फंक्शन में आपको देते चले जाना है, यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ऑल राइट, फाइन, ये चीज़ हमने करी। तो बोल दिया उसने डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एक्स है, वेट्स हैं, एक हिडन स्टेट का वेट है और एक इनपुट का वेट है। ऐसा नहीं कि आपने वो जो प्रीवियस द वन विच इज़ प्रेजेंट इन द हिडन नेटवर्क, ठीक है, हिडन स्टेट में है वो, तो आप उसको वेट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं है, उसको भी वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको याद रखो, लेकिन वो जो भी एज एन इनपुट दिया जाता है न्यूरॉन को, तो उसको तो वेट से यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं करेंगे कि ये हमारा हिडन स्टेट है और बस उसको ऐड कर दिया एक्स इंटू डब्ल्यू से, नए वाले दिन का इनपुट और नए वाले दिन के वेट के मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड कर दिया। नहीं, ये पुराना जो हिडन स्टेट है यू हैव टू मल्टीप्लाई द वेट ऑल्सो, इसके लिए भी एक वेट लेना पड़ेगा, उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ इनपुट की तरह बनेगी बातें वहाँ तो वेट से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये दोनों वेट अलग होंगे। ओके, दिस वेट इज ऑफ द हिडन स्टेट एंड दिस वेट इज ऑफ इनपुट, बोथ द इनपुट्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग होगा। ऑल राइट,
ठीक है, तो ये वाली बात है। और हमने 10h एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज़ करा है मैंने आपको बता ही दिया। सो वी यूज़ द 10h एक्टिवेशन फंक्शन इन कंटेक्स्ट दैट हेल्प्स टू कीप द वैल्यूज इन द हिडन स्टेट विद इन अ मैनेजेबल रेंज। तो मैंने आपसे बोल दिया ना, -1 टू +1 की रेंज के अंदर वो मैनेज करके चलेगा वैल्यूज को, तो एक्सप्लोड नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स मतलब हो सकता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स का मतलब ये है कई बार कभी ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिल जाए, कई बार कोई छोटी वैल्यू मिल जाए। तो हम आपसे ये भी बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि वाई यू आर अप्लाइंग एक्टिवेशन फंक्शन, what is the reason of applying the activation function. So you have to tell them we have put the value into a particular range। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यू को। तो एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी है एक बहुत छोटी है, ये सब काम नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, तो आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे इसी रेंज के अंदर मिलेंगे। ओके, फाइन। तभी हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, एंड 10h एक्टिवेशन फंक्शन इज द मोस्ट प्रिफर्ड एक्टिवेशन फंक्शन इन केस ऑफ रिकरेंट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ओके, फाइन। तो ये पूरा वर्किंग मैंने आपको बता दिया कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरह ही है, सिक्वेंशियल डेटा को हैंडल करना है। तो क्योंकि डेटा सिक्वेंशियल है, तो चेंज ये आएगा कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप चेंज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय परफॉर्मिंग द इटरेशन। ये आप काम कर सकते हो। ओके, एंड आपको बता दिया मैंने, इनपुट लेना, हिडन लेना, आउटपुट आएगा। ये तीन चीजें आएंगी आपके लिए, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट आएगा। ठीक है, एट ईच टाइम द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक हिडन स्टेट वो कंप्यूट करता है। दिस इज द वे इट डू कंप्यूट द हिडन स्टेट। तो ये पुराना वाला, ये वेट हिडन स्टेट का, और ये नया वाला इनपुट, ये नया वाला वेट और बायस, ये आप एक्टिवेशन के अंदर दो तो ये हिडन स्टेट हो जाएगी। बस इसको आगे उठा के ऐड कर देना, ये हिडन स्टेट को मल्टीप्लाई करना वेट के साथ। ठीक है, और इसमें ये आपका बायस है, तो भाई इससे आउटपुट मिल जाएगा, व्हाट दिस इज द आउटपुट ऑन द हिडन स्टेट। ठीक है, फिर आगे नई वाली कहानी फिर सुनाओ, तो वो नई वाली कहानी फिर ऐड कर देना, और ये जो मिला है और इसको आगे आप ऐड करते करते चलते जाइए। ठीक है, ये काम होता रहेगा कंटिन्यूशन में। लॉस कंप्यूट करना है, इफ यू वांट टू कंप्यूट द लॉस, सो वी डू हैव अ लॉस फंक्शन। ओके, तो वाई टारगेट एंड वाई प्रिडिक्टेड, ये दो चीज़ें होती है, प्रिडिक्टेड एंड द टारगेट, ये दो चीज़ें होती है। तो लॉस क्या होता है, प्रिडिक्टेड माइनस टारगेट, या टारगेट माइनस प्रिडिक्टेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से आप कह सकते हो, ये लॉस हो जाएगा। प्रिडिक्टेड और टारगेट के बीच का डिफरेंस है, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, बैक प्रोपोगेट करना है। ठीक है, नीड टू परफॉर्म द बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन में क्या, ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है। तो ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये ऐसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होता है, तो लॉस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ओके, फाइन। और ये आपका लर्निंग रेट है। फाइन, ये आपका पुराना वाला वेट है, नया वाला वेट कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, एंड आर एन एन कैन हैंडल द वेरिंग लेंथ। ठीक है, ज़रूरी नहीं, यहाँ तो लेंथ तो कोई मैटर वाली बात ही नहीं थी ना, कि कम ज़्यादा लेंथ हो, वो तो सब कर लेगा। तो जब डेटा को सीक्वेंस में ट्रीट कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सीक्वेंसेस और ऑफन पैटर्न टू यूनिफॉर्म लेंथ और ट्रंकेटेड टेक्निक्स लाइक सीक्वेंस मास्किंग, और वो सब जो है अपन देख लेंगे, हो जाएगा। जब डेटा सीक्वेंस में डील होता है तो वो सब कर लेता है। ठीक है, ये अपन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बता दूंगा आपको, ये पैडिंग सीक्वेंसेस क्या होता है, व्हेन द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू सीक्वेंस, हाउ दे हाउ दिस थिंग इज परफॉर्म, बिकॉज यू डू हैव टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, ये कर सकते हो आप। टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस करके होता है, तो आप टेक्स्ट को सीक्वेंस में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद फिर आप जो आर एन एन के अंदर दे दीजिए। पैडिंग करना है, पैडिंग कर सकते हैं, पैडिंग आप करिए, और ट्रंकेशन भी हो सकता है, ट्रंकेट भी कर सकते हैं। पैडिंग एंड ट्रंकेशन बोथ कैन बी डन। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना सीक्वेंस का कोई भी सेंटेंस रखना है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 100 का होना चाहिए, तो इफ एनी ऑफ द सेंटेंस इज लेस देन 100, तो उसको वो पैडिंग कर देगा। इफ एनी ऑफ द सेंटेंस इज मोर देन 100, उसको ट्रंकेट कर देगा। ओके, उसको ट्रंकेट कर देगा, उसको कम कर देगा, और कम वाले को 100, मतलब इस तरीके से वो कर देगा। तो आपका ये सीक्वेंस वो मेंटेन कर लेगा। ठीक है, सो सीक्वेंस मास्किंग भी हो जाएगी, और मतलब ट्रंकेशन भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगा। ठीक है, वी डू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन एन, जैसे वेनिला आर एन एन, ये तो आप खुद पढ़ ही रहे थे अभी। द वन विच यू स्टडीड राइट नाउ, ये वेनिला ही है बेसिक फॉर्म। और फिर आपके पास इससे बेटर है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, एल एस टी एम, गेटेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, देन बाई एल एस टी एम ऑल्सो। ठीक है, ये भी है।
फाइन। तो ये जो RNN है उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, ये आप LSTM के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक। So one of the important concept here in case of deep learning, recurrent neural network, if you need to process the sequential data. Okay, and here we are studying this recurrent neural network for dealing text data. Okay, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट को लेकर। ठीक है, तो विल कंटिन्यू अहेड, इसको आगे और पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है हम इसका देखेंगे, कोडिंग करेंगे इसको लेकर। ठीक है, तो इसकी वर्किंग और मैं फिर से समझा दूंगा आपको एंड इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।